any doubts in parallax method or angular method? किसी को doubt? Next method is Kepler's method. ठीक है? Next method is Kepler's method, and it is used to find distance of superior planets. It is used to find distance of superior planets. ठीक है? From the sun. What are superior planets and inferior planets? क्या होते हैं? Superior planets are those that are farther than the Earth. Earth के बाद वाले जितने भी planets हैं वो superior हैं. Mercury, Venus, Earth के बाद जितने भी हैं, Mars, Jupiter, वो सब, Uranus, Neptune, ये सब क्या है? Superior planets. So you can define superior planets as the planets whose orbits are bigger than that of Earth. These are the planets that are farther from the sun than Earth. Earth से जितने भी और दूर planets हैं, they are called superior planets. So these are the planets whose orbits are bigger than that of Earth. So how we can find the distance? We can use Kepler's method, and this method is just based on Kepler's third law. So we first need to define what is Kepler's third law. 9th में पढ़ा हुआ है आपने. You know, Earth is revolving around the sun in elliptical orbits. If t is the time period of revolution of Earth around the sun, time period of revolution means time taken by Earth to go once around the sun. अगर वो t है, then its square is directly proportional to the cube of distance of planet from the sun. ठीक है? Cube of r क्या है? Distance between planet and sun, Earth and sun. तो लिख लीजिए बस इसी को वर्ड्स में बोल देंगे. This will be our statement of Kepler's third law. So write down the statement. The square of time period of revolution of a planet. The square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of distance between planet and sun. Directly proportional to the cube of distance between planet and the sun. So that is p square proportional to r. So for Earth we know both the values. Earth के लिए हमें दोनों values पता है कि इसका time period of revolution है 1 year और distance of sun and Earth that is 1 AD. इस केस में हमें दोनों चीजें पता है. So we can take it to be reference planet. इसको reference लेके चलेंगे. हाँ जी मयंक बोलो. Yes, Mayank, unmute. Ma'am, can you repeat the definition? Okay, the square of time period of revolution. The square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of distance between planet and the sun. Cube of distance between planet and sun. ठीक है? तो I was telling you कि आपको हम reference planet लेके चलते हैं. So suppose T1 is the time period of revolution of Earth around the sun. And what is R1? Say that is distance between Earth and sun. तो ये दोनों values हमें पता हैं. So we can make use of this fact. So we can write accordingly T1 square proportional to R1 cube for Earth. We can write that. T1 proportional to
r1 cube, e1 square proportional to r1 cube. Let us write this for Earth. Now for superior planet, let us write it for superior planet whose distance r2 we want to find. So for that planet we can write this. We can write T2 and R2. अब उसमें से एक चीज सपोज हमें टाइम पीरियड गिवन है उसका, सपोज नेपट्यून है, उसका हमें टाइम पीरियड गिवन है, हम उसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं सन से. सो व्हाट नाउ वी कैन डू, डिवाइड बोथ द इक्वेशंस. डिवाइडिंग T2 square over T1 square is equal to R2 cube over R1 cube. ठीक है, आपको चाहिए R2 बाहर. So how can you write R2 over R1 cube is T2 over T1 square. You can further write R2 over R1 is T2 over T1 raised to power 2 by 3. Is this step clear? Suppose कर लो कि x cube 3 है. So what is x? X is 3 raised to power 1 by 3. उसका cube root हो जाता है ना. You know this much mathematics. ये उसका cube root हो जाता है ना. Same way we have done here. R2 और R1 का जो cube था उधर जाके 1 by 3 हो गया, 2 already था. So 2 into 1 by 3 it becomes 2 by 3. Is this step clear? Now take R1 also on that side. You will be left with the formula of R2. So R2 is T2 over T1 raised to power 2 by 3 into R1. So this will give you distance of superior planet from the sun. Using this formula directly in the numerical problems, we can find out distance of planet from the sun. देख लीजिए एक बार ध्यान से. ठीक है, इज द मेथड क्लियर? कुछ नहीं किया हमने, लॉ यूज किया है. फर्स्ट वी हैव रिटन इट फॉर अर्थ, देन वी हैव रिटन इट फॉर सुपीरियर प्लैनेट, डिवाइड करके वी हैव टेकन R2 एंड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ R2. सो R2 इज T2 over T1 raised to power 2 by 3 into R1. So its calculations are going to be very complicated. We have to use log method. Okay, let us do one numerical now. Write down one numerical based on Kepler's method. Write down the distance of Earth from Sun is, the distance of Earth from Sun is 1.496 into 10 raised by 8 kilometer. You know the value, that is 1 AU given. 1.496 into 10 raised to power 8 kilometer, and its period of revolution around the sun is 1 year. वो भी पता है आपको. And its period of revolution around the sun is 1 year. If the period of revolution of Neptune around the sun is 164.1 year, ये Neptune का time period of revolution दिया हुआ है. Find its distance from sun. Calculate its distance from sun. So these are the values that have been given according to the question. Time period of revolution of Earth, the distance of Earth. This is time period of revolution of Neptune. We want to find its distance R2. So let us put all the values here in the formula. So R2 is T2 over T1 raised to power 2 by 3 times R1. 164.1 over 1 is 164.1 raised to power 2 by 3. 1.496 into 10 raised to power 8 kilometer. Now the question is,
हाउ टू सॉल्व दिस टर्म? क्या आप इसको फाइंड कर सकते हो मैनुअली? इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो वी विल बी यूजिंग लॉग मेथड फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए हम लॉग मेथड यूज करने लगे हैं। तो पहले हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट अस सॉल्व ओनली दिस। सो लेट x इज 164.1 रेज़्ड टू पावर 2 बाय 2। ठीक है, इसको लेट कर लो, assume कर। So taking log on both sides, we can write like this. और इतनी log की बेसिक प्रॉपर्टी तो आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग log x रेज़ पर a log x। ये प्रॉपर्टी पता है आपको? a बाहर आ जाता है, अगर आपका log x रेज़ पर a है तो a यहाँ आ जाएगा, तो we can write power here. So 2 by 3 log 164.1। ठीक है, is this step clear? Yes students, is this step clear to you? Is that clear? Yes or no? Okay, अब देखिए कि when we will see log, उससे पहले there are two parts, those are called characteristic and mantissa part. Mantissa part we will see from the log table, characteristic हमें पहले लिखनी होती है। So I tell you how to write characteristic। ध्यान से देखिए, ये 2 by 3 को as such लिख लेते हैं। इसकी characteristic क्या है? You will see how many decimal places, how many digits are there before the decimal। 3 है ना, उसमें से 1 माइनस कर दो। 3 minus 1 2, आपकी characteristic है 2 पॉइंट। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लगा के we will write the next part, that is called mantissa। So log देखने के 2 पार्ट्स होते हैं, characteristic and mantissa part। So by now I have written characteristic। For example, अगर ये 16.41 होता तो डेसिमल से पहले there would have been 2 digits और आपकी characteristic होती 1, तो आप 1 पॉइंट समथिंग लिखते हैं। यहाँ पे 3 digits are there before decimal, so our characteristic is 2। 3 minus 1 2। ये जो हमने 1 माइनस किया है, बाद में हम प्लस भी कर देंगे, वो हम एडजस्ट कर लेंगे एंटी लॉग में। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शेयर नाउ लॉग टेबल विद यू। लेट अस सी द वैल्यू ऑफ 164.1। ठीक है, चलिए। यस, तो ये लॉगरिथम्स देख रहे हो आप, लॉगरिथम्स लिखा हुआ है और साइड पे मीन डिफरेंसेस हैं। आई टेल यू 10 से स्टार्ट है, यू नो लॉग जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज लॉग टू द बेस 10। तो लॉग 10 इज 1, वहां से हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए हमें चाहिए 16 के ऑपोजिट 4, 164, फिर उसके बाद मीन डिफरेंस 1 का हमने ऐड कर देना है उसमें। ठीक है, तो 16 के प्लेस में 16 के आगे क्या है, 4 की वैल्यू देखिए, ऊपर 4 है ना, सो दिस वैल्यू इज 2148। दिख रही है आपको? हॉरिजॉन्टली चलिए 16 के अगेंस्ट और ऊपर से 4 के अगेंस्ट आपको मिलेगी वैल्यू 2148। वेयर माय कर्सर इज 2148, कैन यू सी दैट? 2148। आगे देखो मीन डिफरेंस, उसी लाइन में आगे चलिए, मीन डिफरेंस है 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि 164 के बाद 1 है, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस 3 का है। ये 3 आप इसमें ऐड कर दो, 2148 प्लस 3 कितना हो गया, 2151। बस ये आपका मेंटिसा पार्ट है। सो योर मेंटिसा इज 2151। योर मेंटिसा इज 2151। और भी क्वेश्चन करेंगे आप, उसमें खुद ही इसको करोगे फिर। ठीक है, देन यू विल लर्न। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर its value is 2151। वैल्यू आ गई हमारी 2151। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व। अब इसको 2.2151 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, बताइए क्या आ रहा है? यस, मल्टीप्लाई विद 2 एंड डिवाइड बाय 3, तो log x कितना हो जाएगा?
इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। Yes, anybody who has solved? वन पॉइंट 476 आ रहा है, देखिए। Is it 1.476? Yes, Japanjot. यस मैम यही है। चलिए, so let us take ना, ये log है, हमें तो x चाहिए ना, ये तो अभी log है, log को कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग देखना पड़ेगा। So let us take anti log of log x, taking anti log on both sides. एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो गए, इसका मतलब x तब आएगा when we will see the anti log of 1.476। अगर हम इसका एंटी लॉग देख लेंगे, ठीक है। अब एंटी लॉग देखने के लिए वो जो पहले हमने 1 प्लस माइनस किया था उसको हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। अब ये जो 1 है ना, इसमें 1 प्लस कर लीजिए, 2 हो गया। इसका मतलब 2 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगाओगे। आफ्टर 2 डिजिट्स यू विल पुट अ डेसिमल, ठीक है। चलिए अब हम एंटी लॉग का पेज देखते हैं, इसको एंटी लॉग लगाते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर अगेन। ये लॉग चल रहा है अभी, ये आ गया एंटी लॉग, ठीक है। ये एंटी लॉग आ गया आपके पास। अब 1 तो खत्म हो गया आपका, 1.476 था जो, उसको 1 में आपने 1 प्लस कर दी करके 2 अपने माइंड में रख लिया कि 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, 1 खत्म हो गया। अब आपके पास पड़ा है 476, तो 47 के अगेंस्ट 6 की वैल्यू देखिए कितनी है। 47 के अगेंस्ट 6 की वैल्यू ये देखिए 2992। ये देखिए कर्सर में लेके आ रही हूँ यहाँ पे, नीचे देखो थर्ड बॉटम लाइन, थर्ड लास्ट लाइन में 47 के अगेंस्ट 0.47 के अगेंस्ट 6 ऊपर से 6 में आ रही है 2992। 2992 ये उसका लॉग एंटी लॉग हो गया, ठीक है। बस यहाँ से हमने यही नोट करना है 2992। 47 के अगेंस्ट पूरा पूरा 6 मिल गया, कोई मीन डिफरेंस नहीं है हमें यहाँ पे। सो आई राइट 2992 और मैंने डिजिट डेसिमल कहाँ पे लगाना है, सेकेंड डिजिट के बाद। सो दिस इज माय आंसर 29.92। तो ये इतना सारा जो था इसका आंसर आ गया आपका 29.92 into 1.496 into 10⁸ किलोमीटर कर लीजिए अब, and you will get your answer in किलोमीटर। तो अब आपको अभी तो बहुत ये लॉ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट व्हेन यू विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ना, आपको लगेगा कि ये लॉग तो कुछ भी नहीं था। अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करते तो उससे बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता और लेबर भी और गलती के चांसेस भी, ठीक है ना। बट लॉग मेथड से वो नहीं होगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करवाती हूँ, देन यू विल रियलाइज कि रियली लॉग मेथड यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। ये तो राइट नाउ यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये व्हेन यू विल यूज टू ऑफ इट, व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस, तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। यस जिवितेश। जी मैम एक बार इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ये जो लॉग मेथड है, नहीं मैम, ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन सारा ही एक्सप्लेन कर दो एक बार दोबारा। न्यूमेरिकल तो हमने वैल्यूज पुट की हैं बच्चे, आरटी ये फॉर्मूला डिराइव किया था ना हमने अभी, उसमें और कुछ भी नहीं किया हमने, Yes, ma'am. वैल्यूज पुट की हैं, इसको हमने लॉग से सॉल्व किया। ये तो वैल्यूज ही पुट की, लॉग से सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और बस ये हमारा आंसर आ गया। फॉर्मूला तो अभी हमने डिराइव किया था, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट की हैं। और मैम log x में हमने हाँ जी
मैम log x में आपने 1 भी लैमिनेट कर दिया था, वो क्यों किया था 1.476 के क्योंकि साथ? जो पहले हमने 1 माइनस किया था ना ऊपर, तो एंटी लॉग के टाइम हम 1 प्लस करके उसको कंपेंसेट कर देते हैं, वो वहां पे हम कंपेंसेट कर देते हैं। वहां पे हमने एक डिजिट कम काउंट किया था ना, यहाँ पे एक डिजिट ज्यादा काउंट कर देते हैं, बस उसका कुछ नहीं प्रॉब्लम होती। यू विल सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल ना, उसमें आपको रिवाइज हो जाएगा, अभी आप देखो। यस समृद्धि? मैम एंटी लॉग वाला पार्ट दोबारा समझा दो। एंटी लॉग का टेबल दिखाऊं? नहीं, एंटी लॉग सॉल्व कैसे किया है? सॉल्व कैसे किए? पहले 1 का समझ में आ गया आपको? 1 पॉइंट का मैंने 1 में प्लस कर दिया, 2 हो गया, इसका मतलब आफ्टर 2 डिजिट्स आई विल बी पुटिंग अ डेसिमल। उसके बाद रेस्ट ऑफ द नंबर कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट 476 तो हमने 47 के अगेंस्ट 47 इधर से देखा, 6 ऊपर से देखा, जो वैल्यू आ रही है वो है 2992। तो सेकंड डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, योर आंसर इज 29.92। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके होश उड़ जाएंगे कि वो हम ऐसे कैसे करते हैं, मैनुअली कैसे करते हैं उसको। अदरवाइज लिखिए, डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम सन इज, राइट डाउन, डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम सन इज 1.082, distance of Venus from Sun is 1.082 into 10⁻11 मीटर। मतलब कि ये आपको R1 दिया हो, and its period of revolution is 224.633 days। अर्थ के प्लेस में उन्होंने वीनस को रेफरेंस प्लैनेट ले लिया, उसका टाइम पीरियड डिस्टेंस दोनों दे दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको T1 R1 ले लेते हैं। If the period of revolution of Earth around the Sun is this, calculate its distance from the Sun। अब वो अर्थ का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, we know its answer is going to be 1 AU, हमें पता है इसका आंसर यही आने वाला है, but we have to solve this question। I repeat the question, distance of Venus from Sun is this, distance of Venus from Sun is this, and period of revolution is this। If the period of revolution of Earth is this, if the period of revolution of Earth around the Sun is 365.247 days, calculate its distance from the Sun। Calculate its distance from the Sun। तो अब ये अर्थ वाला जो ये R2 है हमारा, so T2 over T1 raised to power 2/3 times R1। Let's put in the values। तो कैन यू इमेजिन नाउ कि ये वाला जो पार्ट है ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। पहले आप ये इतने लॉन्ग नंबर्स को स्क्वायर करो, उसका क्यूब रूट लो, उनको डिवाइड करो, यू कांट, ये तो आप छोड़ ही दोगे, दैट इज डेफिनेट। तो लेट अस डू दिस बाय लॉग मेथड, इसको हम लॉग मेथड से करते हैं। सो लेट अस से दिस इज x, अब इसको x से ज्यूम करके चलते हैं, देखिए ध्यान से। So let x is 365.247 over 224.633 raised to power 2/2। ठीक है, अब पहले तो log x will be 2/3 times log a/b। You know what is log a/b? log a/b होता है log a minus log b। इतनी प्रॉपर्टी तो आपको आती होगी। और log ab होता है log a plus log b। ये बेसिक प्रॉपर्टीज मैथ्स में की होंगी आपने। तो व्हेन वी हैव डिवीजन तो उसका मतलब log a minus log b है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने लगे हैं यहाँ पे, देखिए। सो इट विल बिकम, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये मैं लिख रही हूँ, आप इसका रीजन दे देना। log x is 2/3
log 365.247 minus log 224.633. I have used this property just. अब हम log देखते हैं. पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लें क्या है, बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है फर्स्ट टर्म की. टू टर्म्स को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना पड़ेगा. टू टर्म्स का साइमल्टेनियसली लॉग देखें. तो देखिए डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स है. अगेन कैरेक्टरिस्टिक इज 2, तो यहाँ पे आ गया 2 पॉइंट. इधर भी डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स है, कैरेक्टरिस्टिक है 2. अब मेंटिसा के लिए हम देखते हैं लॉग. ठीक है, मेंटिसा के लिए हम लॉग देखते हैं. सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट्स को कंसिडर करेंगे, बाकी छोड़ दो. हम देखेंगे 3652. 36 के अगेंस्ट 5 और 2 का मीन डिफरेंस. ठीक है, पहले 4 डिजिट्स ही लेने, बाकी छोड़ दो. तो लेट अस सी द लॉग. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू. अब आपने थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेना आज. ठीक है, नाउ यू कैन डू दैट. चलिए जल्दी से आते हैं. 36 के अगेंस्ट 5. चलिए ये रहा. ऊपर क्या है वो भी देख लें जरा. ये 0 1 2 3 4 5 है. ठीक है, तो 36 के अगेंस्ट 5, ये मैं कर्सर लेके जा रही हूँ. 36 के अगेंस्ट में जा रही हूँ. ये 0 है. 1 2 3 4 5. 5 6 2 3 आ गई वैल्यू इसकी. आगे क्या है, 3 6 5 के बाद 2. 2 का मीन डिफरेंस देखो. 2 का मीन डिफरेंस है 2, वो इसमें ऐड कर दो. तो ये वैल्यू होगी 5 6 2 5. 5 6 2 3 प्लस ये 2 इसमें ऐड कर दीजिए. यू विल गेट 5 6 2 5. तो देखिए मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ. पहले लॉग की वैल्यू 5 6 2 5. ये मैंने पहले लॉग की वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, अब हम देखते हैं 2 2 4 6. नेक्स्ट जो है पार्ट, उसमें देखते हैं 2 2 4 6 की वैल्यू कितनी. सो लेट अस पुट इट हियर. 22 के आगे 4 की वैल्यू ये है 3502. ठीक है, 2 2 4 और 6 का मीन डिफरेंस ये 1 2 3 4 5 6. 12 उसमें ऐड कर दो. 3502 और 12 कितने हो गए, 3514. कितना हो गया, 3514. देख लो ध्यान से. 22 के अगेंस्ट मैंने 4 देखा और 6 का मीन डिफरेंस ऐड कर दिया, 12 ऐड कर दिया उसमें. तो 3502 plus 12 is 3514. So I'm going to write here 3514. अब इसको सॉल्व करो. इन दोनों को माइनस करिए. 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो. चलो करो, ये बताओ मुझे. हरिया, इनको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है. करिए इसको डिवाइड. ये आ गया. ओके, 0.1407 आ गई. तो इसका मतलब x विल बी एंटी लॉग ऑफ दिस. अब इसका एंटी लॉग देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब ये देख रहे हैं 0 है ना, यहाँ पे 0 में 1 ऐड करो 1. तो 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगेगा. वो माइंड में रख लो कि 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगेगा. आपने 14 के आगे 0 की वैल्यू और 7 का मीन डिफरेंस ऐड करना है एंटी लॉग में. ठीक है, तो ये कंप्लीट कर ही लेते हैं क्वेश्चन. चलिए, आई एम गोइंग टू शेयर एंटी लॉग विद यू. 14 के आगे 0 और फिर 7 की वैल्यू देखिए. ये देखिए 14.14 जो है, आगे 0.
ये रही वैल्यू 1380 है, 1380 है, ठीक है। अब 7 का मीन डिफरेंस ऐड करें, 7 का मीन डिफरेंस है 2, तो ये पॉइंट ये आ गया 1380 प्लस 2 1382, ये कितना आ गया 1382, और हमने डेसिमल कहाँ लगाना था, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो आपका आंसर क्या आ गया 1.382। तो ये जो इतनी बड़ी ये कैलकुलेशन, इतनी बड़ी टर्म थी, उसका आंसर ये आया आपका 1.382। देख लीजिए। यस जीवितेश, हाँ बोलो। यस, मैम 7 का मीन डिफरेंस क्यों लिया? वहां वैल्यू देखो ना 1407 थी, पहले आपने 14 के आगे 0 की वैल्यू दे दी, ओके ओके 7 का मीन डिफरेंस ऐड किया। यस मैम। This thing will be same in case of angles also, log also and anti-log also. पहले 2 डिजिट की हम वैल्यू देखेंगे, थर्ड डिजिट के अगेंस्ट, और फोर्थ डिजिट का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। यस आर्यन, मैम ये लॉग वाला दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। एक मिनट, पहली बात क्या है 1.382, अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपका आंसर आ गया R2 इज 1.382 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 into 10⁻11 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाली 1.496 into 10⁻11। आपको पता ही है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना आने वाला है, वो 1 AU आने वाला है, ठीक है ना। तो वो आपका आंसर आ जाएगा, दैट मींस इट इज करेक्ट। तो इससे ऊपर लॉग का क्वेश्चन नहीं हो सकता, इतनी बड़ी कैलकुलेशन लॉग की इसके ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो दैट इज वेल एंड गुड।